السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آپ نے سورہ یاسین شریف کی فضیلت سن لی, ٹھیک ہے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی فضیلت سن لی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ویڈیو ہم لے کر کے آئے ہیں. انشاءاللہ تلاوت کر کے ہم آپ کو بتائیں گے سورہ فاتحہ کون سی سورت کو کہتے ہیں. جو لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ ان کی تو کوئی بات ہی نہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاؤں گا نہیں, بلکہ تلاوت کر کے میں بتاؤں گا, وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی تلاوت. سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی, آپ تلاوت سماعت کریں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت انشاءاللہ آپ بالکل باغور شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی اور یہ اتنے کام کی چیزیں ہیں. یہ بیماریوں میں انشاءاللہ اگر ہم نے ان کو استعمال کیا نا, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ یاسین شریف کو, تو انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ہی ہم جو ہے اس مرض کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل سنیے انشاءاللہ تعالی پورا. تو دوستو بالکل پورا شروع سے لے کے آخر تک سنیں انشاءاللہ تعالی. ویڈیو کو بالکل بیچ میں چھوڑنا مت دوستو. اگر کچھ چاہتے ہیں کچھ ملے انشاءاللہ, دوا مل جائے, دعا مل جائے, سب چیز مل جائے گی. میں شروع کرنے سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں سے تھوڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل پر میرے اگر آپ نئے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لیں, ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں. لیکن ہاں ایک چیز یہ اور کہنا چاہتا ہوں, بھلے ہی آپ سبسکرائب میرے چینل کو کریں یا نہ کریں, لیکن ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں تاکہ یہ نسخہ اپنے آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کو مل جائے. آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی میں تلاوت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمین. بے شک سبحان اللہ. دوستو یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو ہی سورہ فاتحہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیے یہ تو تھی تلاوت, اب اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں. آپ لوگ باغور سماعت کریں بالکل شروع سے لے کے آخر تک, جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں اس کو آپ بھیج دیں, شیئر کر دیں. سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے. اس سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں, جن میں سے 4 لکھے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سنیں وہ 4 کون سے نام ہیں. سنیے. اول 7 مثانی, ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم سنیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید. اس کو 7 مثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے. یعنی کہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید. اس سورت کو 7 مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں, اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس میں 7 آیتیں ہیں. حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب معراج میں میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں, ایک پر سورہ فاتحہ اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا خداوندہ یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی. یعنی معراج کی رات سرکار نے 2 تختیوں پر, ایک پر سورہ فاتحہ لکھا دیکھا
और एक पर कुरान शरीफ लिखा देखा, ठीक है। तो सरकार ने अर्ज किया, ऐ खुदावंदा ये चीजें किसको अता होंगी? इरशाद हुआ, आपको और आपकी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि ये तोहफा जो है हकीकत में सरकार के लिए और सरकार की उम्मत के लिए। हुजूर ने फरमाया, एक पल्ले में सूरह फातिहा और एक पल्ले में कुरान शरीफ रखा जाए तो दोनों मसावी होंगे, यानी दोनों का सवाब बराबर मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी चीज। और ये शब मेराज में तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दिया कि अपनी उम्मत के लिए, समझे, मेरे नबी को अपनी उम्मत के लिए बताया कि ये आपके लिए तोहफा और आपकी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, समझे। अब हुजूर अनवर ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा पढ़ी गोया उसने तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पढ़ी। जिसने सूरह फातिहा पढ़ी, जिसने तिलावत की सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ की, तो उसने जो है तौरात, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ पढ़ा और जमीन के पहाड़ों के बराबर सोना अल्लाह ताला की राह में खैरात किया। जिसने एक बार सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी, एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी, उसके लिए दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। है कितनी बड़ी फजीलत दोस्तों। एक बार सूरह फातिहा पढ़ने का आप मफहूम समझ गए? जिसने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी उसके लिए दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के 7 दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी चीज। दोज़ख के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खुल गए। सूरह फातिहा का सुनो तो सही, सूरह फातिहा इसी को तो कहते हैं। जबकि मदीना मुनव्वरा में औरतों को जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ने की इजाजत थी सरकार से पहले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाजें सूरह हजर तिलावत फरमा रहे थे। 7 दोज़ख का बयान इस सूरत में है, यानी सूरह हजर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज यानी फजर में सूरह हजर तिलावत फरमा रहे थे। 7 दोज़ख का आसमान इस सूरत में है। उन दोज़खियों का बयान सुनकर एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। हुजूर अनवर को बाद नमाज के मालूम हुआ तो उस औरत से आपने दरियाफ्त किया, उसने अर्ज की, हुजूर वो 7 दोज़ख से हमको क्यों कर निजात मिलेगी? यानी जो औरत दोज़ख के खौफ से गिर पड़ी तो सरकार से उस औरत ने दरियाफ्त किया, सरकार हम ये 7 दोज़ख से कैसे हमें आज़ादी मिलेगी, कैसे हम निजात पाएंगे? उस पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं जो हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा पूरी एक है लेकिन इसमें 7 आयतें हैं और हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला 7 दोज़खों की आग से निजात देगा। यानी कि यहाँ पर यह सबक हमको मिल गया, ये चीज़ हमको पता चल गई कि जिसने सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ी, इसके अंदर 7 आयतें हैं और 7 आयतें अगर हमने पढ़ ली एक बार सूरह फातिहा पूरी, तो हम जो 7 दोज़ख है ना, जो 7 दरवाजे दोज़ख के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे हमको निजात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोम फातिहातुल किताब इसलिए कहा जाता है, ये दूसरा, ये तो सबे मसानी हो गया। ठीक है, हाँ, अब दोम फातिहातुल किताब इसलिए कहा जाता है कि कुरान शरीफ का लिखना और पढ़ना इसी सूरत से शुरू होता है। सुभान अल्लाह, ये हक है क्योंकि कुरान शरीफ जब हम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ ही हम तिलावत करते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ शुरू होता है। ठीक है, दोम फातिहातुल किताब इसीलिए कहा जाता है कि कुरान शरीफ का लिखना और पढ़ना इसी सूरत से शुरू होता है। यह सूरत अल्लाह ताला और बंदा के दरमियान में वाक़ है, जैसा कि इरशाद होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम तो बैनी व बैना अब्दी। ठीक है, हाँ, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नाम जो है इत्मामुस्सलाती, इसलिए कहा जाता है इसको कि इब्तिदा नमाज की इस सूरत से है। नमाज की इब्तिदा जो है वो इसी सूरह फातिहा से है। जब तक सूरह फातिहा ना पढ़ी जाएगी नमाज के अंदर, तब तक नमाज नहीं होती, नमाज होगी ही नहीं। ठीक है, जी हाँ, जैसा कि हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, यानी नमाज नहीं होती जब तक, यानी नमाज नहीं होती जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। यह सूरत नमाज की जान है, यह सूरत नमाज की जान है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल बागौर मुलाहिजा फरमाएं इंशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये सूरत जो है सूरह फातिहा नमाज की जान है। चौथा नाम शिफा है, यानी जिस चीज़ के हमको मैंने कहा था ना कि इसके अंदर आप डॉक्टर के पास दवा लेने नहीं जाएंगे, तो आप सुन लीजिए, चौथा नाम जो है इसका शिफा है, इसलिए कि ये आयत हर मर्ज जिस्मानी की शिफा और हर मर्ज रूहानी की दवा है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिहतुल किताबे शिफाउम मिन कुल्ली दाइन इल्लस्साम, यानी ये सूरत फातिहा हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। अगर सूरह फातिहा किसी भी चीज़ पर पढ़कर दम करके पिला दिया जाए, पानी या खाने पर या पीने पर, तो सिर्फ मौत तो नहीं टल सकती, लेकिन जितने भी मर्ज दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया ना, सारी के लिए, हर मर्ज के लिए ये सूरह फातिहा जो है ये शिफा है सिवाय मौत के। मारिजुन नबुव्वा में लिखा है कि एक शख्स का हाथ कट गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, हाथ फौरन दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो जज्बा, वो ईमान, वो जज्बा, वो तकवा, वो परहेजगारी, समझे, वो ईमान मजबूत होना चाहिए। एक सहाबी एक जंग फतह करके वापस हुए, एक जंग फतह करके वापस हुए, इत्तेफाकन पहाड़ से नीचे गिरे, पांव टूट गया। अल्लाह अकबर। काफिला वालों को मालूम ना था, वो आगे बढ़ गए और वो रोते हुए वहीं पड़े रहे। गैब से निदा हुई कि सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए, तो वो सहाबी ने 7 बार पढ़कर दम कर लिया, उसी दम उनका पैर जो है वो अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरह फातिहा की फजीलत है दोस्तों। वो चले गए, ठीक है, जिनका पांव टूटा था उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया अपने पांव पर, उनका पांव दुरुस्त हो गया और वो चले गए। फिर एक सहाबी को सांप ने काटा, एक और सहाबी ने 7 मरतबा, उन सहाबी ने जिनके पांव में सांप ने काटा, उन सहाबी ने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, सांप का जहर फौरन उतर गया और वो बिल्कुल अच्छे हो गए। अब ये शिफा नहीं है तो और क्या है दोस्तों, बताइए, ये शिफा नहीं तो और क्या है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आपको कसलमंदी या कोई तकलीफ या दर्द सर होता तो सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़कर दोनों दस्ते मुबारक पर दम करके अपने चेहरे मुनव्वर और तमाम जिस्मे अथर पर फेर लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सरकार खुद पढ़ा करते थे सूरह फातिहा चारों कुल, कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ और चारों कुल पढ़कर सरकार खुद अपने दोनों हाथों पर, दोनों दस्ते मुबारक पर दम करके चेहरे मुनव्वर और तमाम जिस्मे अथर पर फेर लेते थे सरकारी द्वारा, हमारे और आपके प्यारे आका। दोस्तों, एक सहाबी ने किसी मजनू शख्स के कान में 11 मरतबा 7 रोज पढ़कर, एक सहाबी ने किसी मजनू यानी दीवाना पागल शख्स के कान में 11 मरतबा 7 रोज पढ़कर दम करने और पानी पर दम करके पिलाने से उसका जुनून जाता रहा। यानी जो उसका पागलपन था ना, जो दीवाना, वो उसकी दीवानगी खत्म हो गई, उसका पागलपन खत्म हो गया, उसका जुनून खत्म हो गया, बिल्कुल अपने होशो हवास में वो दोस्तों आ गया। अब ये शिफा नहीं है सूरह फातिहा के अंदर तो और क्या है। हजरत हुजूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर मुसीबत पड़ती, समझे, सरकार ने फरमाया जब किसी पर मुसीबत पड़ती तो आप सूरह फातिहा पढ़कर दुआ फरमाते, उसकी मुसीबत दूर हो जाती। बेशक हक है, बाज मशाइख यकबार आमाल तजुर्बे में मरकूम है कि जिस पर जादू या करतूत का असर हो या बहुत रोज़ का मरीज हो, दवा उस पर असर ना करती हो, दवा कारगर ना हो, तो फजर की सुन्नतों फ़र्ज़ के दरमियान, यानी फजर की सुन्नतें पढ़ ले और फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ने से पहले दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हम्द के लाम से मिलाकर, यानी कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल हम्दुलिल्लाहि, अगर कोई फजर की नमाज की सुन्नतों के बाद इस तरीके से पढ़ता है, लाम से मिलाकर 41 बार 40 रोज तक बिला नागा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाने से अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएगा, सेहत अता फरमा देगा। ठीक है, शर्त यह है कि पहली तारीख से शुरू करें। ये तो दोस्तों वजीफा भी हमारे लिए बता दिया माशाल्लाह इस सूरह फातिहा की फजीलत में। अब अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। ठीक है, इस सूरत में जुमला 124 हरूफ हैं। इस सूरत में जुमला 124 हरूफ हैं। जो शख्स रात दिन में सूरत को 24 मरतबा पढ़ेगा वो शख्स क़यामत में 24,000 पैगंबरों की शफाअत का मुस्तहिक होगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स दिन रात में इस सूरत को 24 मरतबा पढ़ेगा वो शख्स क़यामत में 24,000 पैगंबरों की शफाअत का मुस्तहिक होगा।
इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, आप लोग भी बताएं कौन कौन पढ़ेंगे, कमेंट में जरूर बताना। आगे मुलाहिदा फरमाते हैं इंशाल्लाह। एक रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से कुछ दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। यानी एक रोज जिब्रील इस्लाम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से कुछ दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, कहने लगे आज आसमान का दरवाजा खुला है जो आज तक नहीं खुला था। आए है हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं कि आज आसमान का दरवाजा खुला है आज जो आज तक नहीं खुला था। उसके बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ। जिब्रील ने कहा ये फरिश्ता अब तक जमीन पर नहीं आया। आए है सुनो दोस्तों, फरिश्ते ने आकर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया कि हुजूर आपको खुशी मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको दो नूर अता किए हैं। आए है वो कौन है, वो नूर क्या है जो पहले किसी नबी को नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है, वो फरिश्ता बयान कर रहा है, एक सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयतें, यानी आमन रसूलों से वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन तक, उनमें से कोई भी एक पढ़ ली जाए तो सालिम कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि सूरह फातिहा और पहले पारे से लेकर के जो सूरह बकरा 2.5 पारों में है ना, उसका आखिरी रुकू, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, जो भी इंसान पढ़ेगा तो उसको कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसको रिवायत किया है इसको मुस्लिम ने इब्ने अब्बास से। सुभान अल्लाह। दोस्तों बहुत ही प्यारी चीज आप तक पहुंची है यार, मिस मत करना, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि इस फजीलत से हर इंसान फैज़याब हो, हर इंसान फायदा उठाए यार। क्योंकि अगर किसी नेता वगैरह की बात होती है ना कि नेता वहां मारा गया, नेता का ये हो गया, तो हम बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन उस चीज को जरूरत नहीं वायरल करने की, लेकिन इस चीज की हम लोगों को जरूरत है। इसमें सूरह फातिहा की कितनी बड़ी फजीलत ये आप लोगों ने सुनी। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, सूरह फातिहा की फजीलत बहुत बड़ी है, इससे जितना चाहें आप इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाइए। और कौन कौन इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेगा ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता है सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे एक से एक बेहतरीन चीज़ आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अगले मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो की टॉपिक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ही हजरात, बल्कि दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बीमारी से निजात फरमाए और पूरी दुनिया से इस बीमारी का नामो निशान मिटा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।